Hello and welcome to this special episode of One World, One Heart, presented by Medgate Today TV Digital on the occasion of World Heart Day. Today, we are putting the spotlight on the most important muscle of our body, the heart. Cardiovascular diseases are one of the leading causes of death globally, yet many of them can be prevented through awareness and timely care. To help us understand this better and guide us with the simple, practical insights, we have with us an eminent cardiologist from Apollo Indraprasth Hospital, Dr. Varun Bansal. Thank you so much, Doctor, for coming here and take out the time out of your schedule to give the awareness insights and to educate and guide the audience of ours and the masses of globe. Thank you very much, Ritika ji. It's a pleasure to be here. And it's a great opportunity for me as well to connect with the viewers and discuss what people would not know or they have doubts about their heart, their health, and to promote good health for everybody. Thank you very much. And this is our motto as well, to spread as much as awareness into the masses. Sir, could you please brief us about yourself so that our audience will also get to know about you a little bit? My name is Dr. Varun Bansal. I am a cardiothoracic surgeon at Indraprastha Apollo Hospitals. But just before being a cardiothoracic surgeon, we are all trained in cardiology, that is preventive cardiology, clinical cardiology. Before being a cardiologist, I am a doctor, and before being a doctor, I am a human. So I go through the same phase what any of the patients or any of the people go through. I also go through stressful lifestyles. I also go through diet, which is sometimes healthy, sometimes which makes me feel greedy towards having more food and having more sugary foods. So I am a human making things better for myself and for my patients. Very well said, sir. जैसा आपने बोला कि you are also human, and but when we see you as a doctor, or especially the cardiologist, nowadays among the people, there's one thing that nowadays cardiovascular disease is also known as silent killer. So starting ही मैं इससे करना चाहती हूँ कि how you can just decode this कि ये silent killer क्यों है and how the masses can prevent himself by knowing the risk, by making the prevention at the right time. So problem with heart diseases, as you said, they are silent killers. Silent killer मतलब कि अंदर बीमारी बन रही है और किसी को पता नहीं चल रहा है. तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं वो बहुत ही लेट स्टेज पे आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि उनको बहुत टाइम से हाइपरटेंशन होती है, डायबिटीज़ होती है और उसके चलते उनको हार्ट डिजीज़ बन रहे हैं. किसी को हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो रही है, किसी के हार्ट के वाल्व्स ख़राब हो रहे हैं, किसी को दिल में छेद था जो बचपन से उनको नहीं पता चला, किसी की छाती में ट्यूमर है, किसी के हार्ट के अंदर ट्यूमर है, वाल्व टाइट हो रहा है, वाल्व लीक हो रहा है. ये बहुत देर तक नहीं पता चलता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर, क्योंकि वो साइलेंट रहता है बहुत टाइम तक जब तक कि कॉम्प्लिकेशन के रूप में सामने नहीं आ जाता है. Okay, and what are, you can say, the small warnings before having such kind of cardiovascular disease? तो ये भी बहुत ही क्लियर सिग्नल्स भी देता है हार्ट. ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली साइलेंट रहता है. अच्छा. जैसे कि अगर किसी को अब थकान होने लगे, अर्ली फैटिग, जो कि पहले रूटीन एक्टिविटी में उनको थकान नहीं होती थी जी, पर अब थकान होने लगे, तो ये एक वार्निंग साइन है. छाती के बीच में दर्द, भारीपन जो रेडिएट करता है जॉ में, कंधे में, पीछे की तरफ, ये सब कुछ वार्निंग साइंस हैं. तीसरा है ठंडे पसीने आना. ठंडे पसीने आना मतलब कमरे में गर्मी नहीं है पर पसीने आ रहे हैं, कोल्ड स्वेट्स. सर्दी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, तो दोज आर कॉल्ड कोल्ड स्वेट्स. चौथा है सांस फूलना. किसी को चलने पे, सीढ़ी चढ़ने पे, दौड़ने पे सांस फूल रहा है, छाती में भारीपन हो रहा है. पांचवा है पैरों में सूजन आना. अच्छा. किसी को पैरों में सूजन आ रही है, जो सुबह सुबह उठते हैं तो पैरों में सूजन नहीं है, वो फेस पे आ जाती है और जैसे जैसे शाम होती रहती है पैरों में सूजन आने लगती है. तो ये ट्रेवल करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड है जी, वो डिपेंडेंट एडिमा हो जाता है उसमें, कि जो नसों के अंदर खून है वो तो वैसा ही रहता है, जो नसों के बाहर खून है जिसको लिम्फ बोलते हैं, okay, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से उनको एडिमा हो जाता है. ऐसे ही जो दूषित खून है, वीनस खून है, वो भी वहाँ पे पैरों में जो डिपेंडेंट एरियाज है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो वीनस कंजेशन हो जाती है, लिम्फ इकट्ठा हो जाता है और इस वजह से पेशेंट को बहुत देर से पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है. बट ये कुछ वार्निंग साइंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि छाती में दर्द या भारीपन होना, सांस फूलना, ठंडे पसीने आना, पैरों में सूजन होना. हाँ, एक चीज़, रेगुलर कभी कभी चक्कर आना, जो कि रेगुलर नहीं होते.
पेशेंट को कभी भी रैंडमली चक्कर आते हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कोई डूब रहा है अंदर, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, यानी कि छाती के अंदर उनको लग रहा है कि मेरी मौत नज़दीक आ रही है, मुझे कुछ हो रहा है, मैं डूब रहा हूँ। साथ में चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, ये कुछ लक्षण हैं जो कभी भी हों तो ये वार्निंग साइंस है कि उनको निगलेक्ट ना किया जाए। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट की सलाह लें और कुछ बेसिक टेस्ट करके उनको ये रूल आउट कर लें कि ये हार्ट रिलेटेड तो नहीं है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि आपने सिम्टम्स बताए, तो आई जस्ट वांट टू नो वेदर दीज सिम्टम्स आर जनरलाइज्ड टू ऑल द एज ग्रुप और किसी किसी में ये होता है। सो वेरी नाइस क्वेश्चन। पहली बात, ये जनरलाइजेशन नहीं है। सबको चेस्ट में पेन नहीं होगा, सबको चक्कर नहीं आएंगे, सबको पैरों में सूजन नहीं आएगी, सबको छाती में भारीपन नहीं होगा। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग एज ग्रुप पे आते हैं। अच्छा। बच्चों में अगर किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, यानी कि जो पैदाइशी डिफेक्ट्स होते हैं, तो कुछ बच्चे तो उसमें नीले पड़ने लगते हैं जब भी एग्जर्शन हो, उनको बोलते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज। कुछ बच्चे पैदाइशी नीले होते हैं, कुछ बच्चे कुछ टाइम बाद नीले पड़ने लगते हैं। कुछ बच्चे नीले नहीं पड़ते हैं, जिनको बोलते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, जिसमें साइनोसिस नहीं होता, बच्चा नीला नहीं पड़ता है, पर दिल में छेद है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको सांस फूलने लगती है, या वो ठीक से अपनी मदर का दूध नहीं पी पाता है, कमजोरी रहती है, फेलियर टू थ्राइव, यानी एडिक्वेट वेट गेन नहीं हो रहा है, हाइट गेन नहीं हो रही है। ये कुछ लक्षण है बच्चों में। ये बच्चों में ग्रोथ हार्मोन को भी इम्पैक्ट करता है? ग्रोथ हार्मोन को एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं करता है, ओवरऑल ग्रोथ को ही इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हार्ट अपनी तरफ से पूरी बॉडी में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से पूरी बॉडी को ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, और जो भी पंप भी कर पा रहा है उसमें भी एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं है, तो इस वजह से भी बॉडी की ग्रोथ कम होती है। अगर एडोलेसेंस की बात की जाए, यानी कि यंग लोगों की, अगर उनको वैल्व में प्रॉब्लम है तो उनको सांस फूलना, छाती में भारीपन होना, ऐसी तकलीफ रहेगी। बहुत ही यंग एज में कोरोनरी आर्टरी डिजीज कम पाया गया है, हालांकि अब ये सिनेरियो बदल रहा है। जैसे पहले अगर हम देखते थे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज एल्डरली लोगों में पाया जाता था, 60 साल की उम्र से ज़्यादा। धीरे धीरे वो चेंज होने लगा, अब वो 40 साल की उम्र भी के लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जिनको कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें छाती में भारीपन, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो वो, क्योंकि लेवल ऑफ एक्टिविटी भी तो चेंज हो जाती है। फॉर अ 70-year-old पर्सन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो जिम जाके दौड़ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक रूटीन लाइफस्टाइल में रहते हैं। उस टाइम पे उनको अगर तकलीफ होने लगे तो वो भी हार्ट डिजीज के इंडिकेशन है, यानी कि जल्दी थकान होना, छाती में भारीपन होना, पसीने आना, जो कि मॉर्निंग वॉक के टाइम हो रहा है उनको, तो वो भी वार्निंग साइंस हैं। तो इसीलिए अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग साइंस हैं, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। सर, राइट नाउ यू सेड अ लॉट इंडिकेशंस जो वार्निंग साइंस हो सकती हैं इन ऑल द एज ग्रुप्स। मैं एक ये यहाँ पे पॉइंट रखना चाहूँगी, अर्ली डायग्नोसिस, एंड वी ऑलवेज से इट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कैसे एक डेली रूटीन चेकअप को अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि नॉट ओनली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कोई भी डिजीज़ आपके बॉडी में आ रही है उसको प्रिवेंट कर सके? तो पहली बात, ये जो चेकअप है ना, ये हमें हॉस्पिटल में शुरू नहीं होगा, ये चेकअप घर पे शुरू होगा। वेरी नाइस, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। तो अगर पेशेंट या कोई भी नॉर्मल इंसान अपनी दिनचर्या को ही थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें कि क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपने खान पान में क्या बदला, उससे क्या चेंजेस आए, उन्होंने कुछ नहीं बदला, उससे क्या चेंजेस आए, तो ये जो इवैल्यूएशन है ये घर पे ही शुरू हो रही है। यस। आजकल बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स घर पे अवेलेबल हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर मशीन। यस। पेशेंट घर पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करके देख सकते हैं कि वो हाई तो नहीं है, yes. लो तो नहीं हो रहा है, yes. हार्ट रेट कैसे चल रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे चल रही है। इसके लिए उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने किसी नज़दीकी रिलेटिव से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इवैल्यूएशन जो है घर पे ही शुरू होगी। बिल्कुल। उसके उसके बाद वो बिल्कुल नज़दीकी डॉक्टर, जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, जिनसे वो बात कर सकते हैं रूटीनली, उनसे जाके सलाह कर लें कि हमारे पास हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्लस उनको अपनी खुद की फैमिली हिस्ट्री देखना इंपॉर्टेंट है। जो उनके फैमिली डॉक्टर्स हैं उनको उनकी फैमिली हिस्ट्री पता होगी कि उनके पेरेंट्स कहीं हाइपरटेंसिव तो नहीं है, पेरेंट्स को शुगर तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो कई सारी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वो जेनेटिक है। एओर्टिक एन्यूरिज्म है, वो बच्चों में होने की प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा होती है। वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ कम होते हैं।
ऐसे कंsanguineous मैरिजेज यानी कि कई देशों में डिस्टेंट कजन्स के साथ शादियाँ होती हैं, तो उनमें कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो जो फैमिली डॉक्टर हैं उनको वो हिस्ट्री पता होती है, तो वो डायग्नोसिस अर्ली कर सकते हैं। फिर अगर ये स्क्रीनिंग हो जाए तो नियरेस्ट हॉस्पिटल पे जाके या किसी सुपर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके बहुत ही बेसिक टेस्ट करा सकते हैं, जिनमें उनको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत महंगे नहीं हैं, जिनमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ईसीजी कराना, हॉल्टर कराना। हॉल्टर मतलब 24 घंटे की ईसीजी होती है वो। ओके। तो पहले क्या होता था, आज से कई साल पहले एक बड़ी सी मशीन गले में टंगती थी, लोगों को एम्बैरेसमेंट फील होती थी कि इसको लेके कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे। आजकल हॉल्टर है सिर्फ स्टिकर, शर्ट के अंदर स्टिकर लगते हैं, वो आप शर्ट पहन के अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। No one will notice. किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कि एक बारी ब्लड प्रेशर चेक किया वो ठीक है या ज़्यादा है, पर हम रेगुलर कैसे देख सकें वो कैसे रह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बारी चेक किया और तभी ज़्यादा है और हमने उनको दवाई शुरू कर दी जिसके बाद उनका लो होना शुरू हो गया। बिल्कुल। तो एक छोटा सा डिवाइस है जो है बाँह में लग जाएगा, वो 24 घंटे लगातार हर 15 मिनट या 30 मिनट पे ब्लड प्रेशर चेक करता रहेगा। It means, in short, you are saying that prevention always starts with our home. Yes, definitely. ये सब टेस्ट घर पे कर सकते हैं। Exactly. And if you have the correct sense, आप अगर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप उसको अर्ली डायग्नोस खुद कर सकते हैं एंड देन यू कैन कंसल्ट टू द स्पेशलिस्ट। डेफिनेटली। इसके अलावा जो टेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर्स या क्लिनिक्स या छोटे हॉस्पिटल्स में होते हैं वो है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें ट्रेडमिल पे दौड़ के उस टाइम पे ईसीजी चेंजेस देखे जाते हैं। एकोकार्डियोग्राफी यानी कि छाती का और हार्ट का अल्ट्रासाउंड, उसमें ये देखा जाता है हार्ट के चेम्बर्स कैसे हैं, ब्लड फ्लो कैसा है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक सीटी स्कैन है जिसमें हार्ट की नसों के अंदर ब्लॉकेज या कैल्शियम डिपोजिशन देखी जा सकती है। कार्डियक एमआरआई जिसमें देखा जाता है कि हार्ट की मसल मोटी है कि नहीं, पतली है कि नहीं, कहाँ पे स्कारिंग तो नहीं हो रही है, कहीं पे कोई ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन्स हैं। तो ये सारे टेस्ट जितने भी अभी तक मैंने आपको बताए, इनमें से किसी में भी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, ओपीडी बेसिस पे किए जा सकते हैं। वाओ। एडमिट होने की ज़रूरत तब पड़ती है अगर हमें कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है, हार्ट नस की एंजियोग्राफी करनी है, जो कि अब वैसे भी डे केयर पे होने लगी। डे केयर पे मतलब पेशेंट सुबह जाते हैं, 2 घंटे में एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी होने में 15 मिनट ही लगेंगे, टेस्ट करने हैं और सब कुछ होके 2 घंटे, उसके बाद 1 या 2 घंटे की रिकवरी, बाय अर्ली इवनिंग वो घर जाने को तैयार है। These are the advancements and innovations the technology is doing. In diagnostics. Yes. अभी थेरेपेटिक्स तो और भी आगे हैं, पर ये डायग्नोस्टिक्स में ही अब इतना है। कार्डियक कैथेटराइजेशन स्टडी जिसके अंदर हार्ट के अंदर के प्रेशर्स, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये सारे के सारे टेस्ट एक ही दिन में सुबह से देखकर अर्ली इवनिंग तक सारे के सारे किए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे हैं, कौन सा टेस्ट करना है और आपको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल, वेल सेड सर। अब थोड़ा हम आते डाइटरी पे सर। हमने बहुत टेक्नोलॉजी वाली बातें कर ली, हमने जो सिंपल जो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या रूट कॉज होता है उसकी तो बात कर ली, बट हमारा जो लाइफस्टाइल है, एंड इन द लाइफस्टाइल देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज, देयर आर 3 थिंग्स आई वुड से। फर्स्ट वन इज द डाइट, second one is the exercise, and the third one is mental health, because in mental health nowadays stress is coming, so we have to just cater that point as well, starting with the diet sir. Diet में a lot of doctor says कि घी मत खाओ, कार्ब को कम कर दो, शुगर इनटेक करना बिल्कुल ही बंद कर दो, इससे you can just prevent your heart disease. But many times we have seen कि ये सब करने के बावजूद लोगों को हार्ट डिजीज़ होता है। इवन जो ड्रिंक नहीं करते हैं, जो स्मोक नहीं कर सकते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, बट स्टिल दे ऑल्सो कैच। तो इसके रीज़न क्या है एंड व्हाट आर द रिस्क कि आप अवॉइड कर दें बट तब भी आपका हार्ट, देयर आर सम चांसेस कैन कैच द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि हार्ट डिजीज़ क्यों होते हैं। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि इसमें जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि किसी के पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम रही है तो उनको चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके चलते अगर वो अपना लाइफस्टाइल भी ख़राब कर लें, यानी कि हाई कार्ब डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, या उनको ब्लड प्रेशर या शुगर जल्दी हो जाए, तो उनको चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट ऐसे ही जिनको कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है पर वो अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाएं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई प्रोटीन, रेगुलर एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, और वो अपने ब्लड प्रेशर को ठीक से कंट्रोल में रखें, लो सॉल्ट डाइट खाएं, शुगर कम खाएं जिससे कि उनको डायबिटीज़ जल्दी ना हो, तो उनमें चांसेस तो अब उनको जेनेटिक से मिले, पर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल से उसको पुश कर दिया कि जो प्रॉब्लम हो सकता है उनको 40, 45, 50 की एज पे ही आने वाली थी, वो उनको अब 70, 75 की एज पे आएगी, या फिर शायद आएगी भी तो परेशानी नहीं करेगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी उससे।
तो इसलिए डाइट का इसमें मेजर रोल होता है कि यही तो एक ऐसी चीज़ है, डाइट और एक्सरसाइज, जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल दिस इज व्हाट इज इन आवर हैंड्स। यस, जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में क्या सोच के करना। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ हमारे हाथ में है, फॉर एग्जाम्पल अगर डाइट की बात करें तो बहुत जगह पे कहा जाता है कि ऑयल कम खाएं। ऑयल ना खाना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑयल में भी फैटी एसिड्स हैं जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, यस, जो हमारी सेल हेल्थ, स्किन हेल्थ, बॉडी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल ज़ीरो ऑयल खाना आंसर नहीं है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी हैं। ज़ीरो कार्ब डाइट नहीं हो सकती है। यस, प्रोटीन ज़रूरी है, नो डाउट, पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स इसका आंसर नहीं है। हमारी डाइट में ही इतना प्रोटीन हो सकता है कि हम उसको खाएं तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो कि 1 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे है, Yes. वो फुलफिल हो सकती है। उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स आर सप्लीमेंट्स, वो एडिशनल है, डाइट को Exactly. रिप्लेस नहीं कर सकते हैं वो। इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगी सर कि आजकल का यूथ है, सी द यंगर किड्स आर मोर इनटू सप्लीमेंट्स। उनको इजी एक्सेस मिल जा रहा है कि हम एक फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, सप्लीमेंट उठा लेते हैं। व्हाट आर द रिस्क ऑफ हैविंग द सप्लीमेंट इंस्टेड ऑफ हैविंग द रियल फाइबर, रियल प्रोटीन और रियल फूड इन आवर बॉडी? थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो इसका बेसिक आंसर इसी के वर्ड में ही छुपा है, सप्लीमेंट शुड बी सप्लीमेंट। जो हमने बात की कि अगर हम डाइट को सप्लीमेंट से रिप्लेस कर देंगे तो सप्लीमेंट्स में कुछ चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ चीज़ें नहीं है। जी बिल्कुल। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, उनमें प्रोटीन हाई है, कार्बोहाइड्रेट कम है, पर उनमें फैट के बारे में बात नहीं हो रही, मिनरल्स के बारे में बात नहीं हो रही। हमारी रेगुलर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम किसी भी तरीके, मोस्ट कॉमनली आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं या मल्टीविटामिन्स आते हैं जी। तो अगर मल्टीविटामिन्स के बारे में बात की जाए तो कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जिनको हम ज़्यादा ले लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, यानी कि ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा ले लेंगे, इनका चाहे सप्लीमेंट्स के थ्रू, चाहे हम मल्टीविटामिन टैबलेट्स के थ्रू ले लेंगे, तो इनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, वो भी बॉडी को नुकसान करेगी। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो यूरिन में निकल जाएंगे, बट ए, डी, ई, के की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स आंसर नहीं है। सप्लीमेंट्स तो उन लोगों को दिए जाते हैं या तो जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्स हैं, या फिर जो बीमारी से बाहर निकल रहे हैं, जिनको कि रेगुलर डाइट से एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, उनके लिए सप्लीमेंट्स हैं। जो भी सप्लीमेंट्स पहले बने थे वो इसलिए नहीं बने थे कि डाइट को रिप्लेस कर दें। जब ह्यूमंस ने बनाए, जो मेडिकल साइंस ने सप्लीमेंट्स बनाए, वो इसलिए बनाए कि जो बीमार हैं लोग और वो ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं, उनको उस टाइम पे हाई कैलोरी हाई प्रोटीन कैसे दी जा सकती है, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो, दूध में घोल के दे दिया जाए, वो सब कुछ किया जाए। बट अब लोगों ने क्या किया कि उसको रिप्लेस कर दिया अपनी डाइट से। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, इसमें आपने बात करी थी एक्सरसाइज की सर, तो आप थोड़ा इसके ऊपर भी एनलाइटन करें हमें कि कितना ड्यूरेशन अपने 24 घंटे में से हम निकाल सकते हैं जिससे हम अपने दिल को एकदम हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज एक पिल की तरह है, उसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम महीने में एक बार ही कर लें। क्या हम खाना ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार ही खाना खाए, 6 दिन खाना नहीं खाया? Not at all. ऐसा नहीं होता, हम रेगुलर इंटरवल्स पे खाते हैं। Yes. तो ऐसा ही एक्सरसाइज भी पिल है कि हर थोड़ी देर में करनी होगी। एडिक्वेट टाइम इज 4 to 5 टाइम्स अ वीक। इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो हैं वो कहते हैं 30 मिनट्स पर डे, बट मैं अपने पेशेंट्स को 30 मिनट्स नहीं कहता, मैं उनको बोलता हूँ 24 मिनट्स। ये इम्पैक्टफुल ऐसे है कि 1 मिनट इन 1 आवर, तो 59 मिनट्स आपके पास अपने लिए हैं। बिल्कुल। 1 मिनट आपने बॉडी को देना है, तो 1/60th ऑफ योर टाइम अगर आप अपनी बॉडी को दे देंगे एवरी डे 24 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट एक्सरसाइज मतलब जिसमें हार्ट रेट बढ़े, सांस फूले, बॉडी को वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़े। सिर्फ टहलना ही एक्सरसाइज नहीं है, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, तो बात करना मुश्किल है, आपको रुक के बात करनी पड़े, एकदम से सांस फूली हो, आप एक्सर्ट करें। जब आप एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़े 5 या 10 मिनट। टहलना एक्सरसाइज नहीं है। तो इंटरनेशनल गाइडलाइन 30 मिनट्स पर डे है, मैंने उसको कम करके 24 बना दिया ताकि लोग ये समझ सके कि 59 मिनट्स हमारे पास अपने लिए हैं। बिल्कुल। सिर्फ 1 ही मिनट देना है अपनी बॉडी को। बिल्कुल। एंड थर्ड मैं बात करना चाहूँगी सर स्ट्रेस की। आजकल के भागम भाग जिंदगी में लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं होता है, जो थॉट्स चल रहे होते हैं स्पेशली इन द नेगेटिव सेंस, बिकॉज स्ट्रेस इज़ व्हाट, स्ट्रेस इज़ कि ओवरलोड ज़्यादा हो गया है, कुछ नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है कि सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, समथिंग लाइक दिस। हाँ, वो कैसे हमारे हार्ट को इम्पैक्ट करता है। वो एक स्ट्रेस बस वर्ड नहीं है, इट्स यू कैन से अ थिंग विच इज़ जस्ट हर्टिंग आवर होल बॉडी। तो इसके ऊपर थोड़ा हमें बताइए।
तो अगेन स्ट्रेसेस एक थिंग नहीं, आपने सही बोला, स्ट्रेस एक सिंड्रोम है। स्ट्रेस एक सिंड्रोम है क्योंकि वो हमारी सिर्फ बॉडी को ही इफेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल हमारे माइंड को, हमारी डेली रूटीन को, हमारी Exactly. इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल अगर हम स्ट्रेस्ड आउट हैं तो हमारे आसपास के लोग भी स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं। हम जो अपनी बीमारियां उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस चक्कर में। स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है, बच्चों को स्ट्रेस है पढ़ाई का, यूथ को स्ट्रेस है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का, बिल्कुल। एल्डरली को स्ट्रेस है अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। हर किसी को स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को कम करना पॉसिबल नहीं है, स्ट्रेस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। यस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस क्या चीज़ है? स्ट्रेस इज ट्राइंग टू कंट्रोल विच वी कैन नॉट कंट्रोल। इन वेरी सिंपल टर्म्स, वेरी वेल सेड सर। सिंपल से तरीका है कि बिल्कुल। तो हमें कर क्या सकते हैं? वी जस्ट नीड टू पुट एफर्ट्स, वी जस्ट नीड टू स्टे काम एंड पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू डू। बच्चों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि अपनी पढ़ाई करें, बिल्कुल अपना कर्म करना है। गीता में लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बिल्कुल बिल्कुल। यूथ के लिए भी अपना कर्म करना है, चाहे वो लाइफस्टाइल के लिए है, चाहे वो रिलेशनशिप्स के लिए है। रिलेशनशिप से याद है कि ऐसा सिंड्रोम भी आपको पता है क्या? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। नो सर, वी डोंट नो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी है कि एक्सट्रीम इमोशनल ट्रॉमा से भी कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि किसी को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा मिले तो उसकी वजह से उनको कार्डियोमायोपैथी हो जाए और हार्ट फंक्शन कम हो जाए। इसको बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। साइंस में डिफाइंड है। ओह, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू इट। तो फिर तो ये अच्छी बात है कि व्यूअर्स को एक टॉपिक मिलेगा जिसको वो गूगल सर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और थोड़ा आप इसके बारे में बता सके कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कंट्रोल ऐसे ही कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ से हमें इतना इफेक्ट नहीं होना है कि हम अपनी हेल्थ को नुकसान करें। ओके। Emotional disturbance is one thing, but we need to be involved with our peers, our family members. वेरी वेल सेड। तो हमारा जो बैकअप प्लान है वो हमारी फैमिली है, वो हमारे पीयर ग्रुप है, हमारे दोस्त। इमोशनल ट्रॉमा कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है एट एनी स्टेज, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो एडोलेसेंस हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो एल्डरली हो। हमारे कोई भी लव्ड वंस, चाहे वो जान के चाहे वो अनजाने में हमसे दूर हो जाएं, चाहे वो नेचुरल तरीके से या उनकी डेथ हो जाए, तब भी वो एक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इससे और उससे कार्डियोमायोपैथी भी होती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उस टाइम के लिए तो सिर्फ हार्ट को सपोर्ट करना है विद मेडिसिन्स। विद टाइम ये ठीक हो जाता है क्योंकि टाइम हील्स। एग्जैक्टली, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। बट जब तक के लिए ये बीमारी चल रही है, यानी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की वजह से कार्डियोमायोपैथी चल रही है, तब तक के लिए कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगेन गोइंग बैक टू द फैमिली, गोइंग बैक टू योर फ्रेंड्स एंड बीइंग हैप्पी फॉर योरसेल्फ। टुडे what is important is being alive. एग्जैक्टली, वेल सेड सर। आपको कब नहीं पता कि जैसे कोरोना आ गया था, आपको नहीं पता था कोरोना आ रहा है, एंड द काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, द काइंड ऑफ डिजास्टर्स थिंग कोरोना लेके आया था, जो बहुत लोग अभी भी उससे उभर नहीं पाए हैं। उसके कारण बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं उनके बॉडी में। तो हमें हर दिन जो हमें मिल रहा है उसको अच्छे से जीना चाहिए, उसको जस्टिफाई करना चाहिए, और हमें भगवान से, जिनको हम मानते हैं, उनसे हरदम हम ग्रैटिट्यूड के साथ उनसे हमें कह सकते हैं कि धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने हमें एक दिन दिया है। तो कोविड से भी मुझे एक बात याद आई कि कुछ डिस्कशन चलती हैं, कुछ मिथ्स हैं कि कोविड वायरस या कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ी। मेरा नेक्स्ट सेगमेंट इसी के ऊपर था कि आजकल जो इतना सारा डिस्कशन हो रहा है, इतने सारे डिबेट्स हो रहे हैं कि आफ्टर हैविंग सर्टेन यू कैन से वैक्सीन्स जो हमें दिया गया था, उसके कारण हार्ट डिजीज ज़्यादा हो गए हैं। क्या ये ट्रूथ है कि बस एक मिस इन्फॉर्मेशन एक सोसाइटी के अंदर फैलाया जा रहा है? ये एक मिथ है और मिस इन्फॉर्मेशन है क्लियरली, क्योंकि कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं होती है जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम हो जाए। वैक्सीन का काम क्या है? वैक्सीन का काम है हमारी बॉडी को सेंसिटाइज करना, ताकि जब एक्चुअल इन्फेक्शन आएगी तो हमारी बॉडी उसको झेल पाए। कोई भी वैक्सीन ऐसी है। तो कोविड वैक्सीन भी ऐसी बनी, कुछ एंटीजन बेस्ड वैक्सीन थी, कुछ एंटीबॉडी बेस्ड वैक्सीन थी। उन सब ने क्या किया कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर किया। कोरोना वायरस अपने आप में वायरस एक्सपोजर से लोगों को ज़रूर डेफिनेटली सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन रही, और इसका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव पाया गया है। कुछ स्टडीज़ में, अभी लास्ट ईयर एक फिलाडेल्फिया में भी स्टडी हुई थी जिसमें पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया कि कोविड इन्फेक्शन जिसको हुई
उसको सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वैस्कुलर डिजीजेस बढ़ गए हैं। ओके। तो इसका आंसर तब भी आया था जब हम कोविड को ट्रीट कर रहे थे। जब मैं फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में तो कनाडा में था, तब मैं अपनी फेलोशिप करता यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। सेकेंड वेव ऑफ कोविड में मैं इंडिया में था। तो तब भी आप देखेंगे कि बहुत सारी एंटीवायरल मेडिकेशन चली, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स की तरह आई, बट आंसर किससे निकला? आंसर आया जब लोगों को स्टेरॉइड्स दिए गए तो लोग ठीक होने लगे। तो स्टेरॉइड क्या करते हैं? वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन थी, जो लंग्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, उन दिनों लोगों को, बहुत सारे लोगों को न्यूमोनिया हुआ, हार्ट प्रॉब्लम्स हुई, स्ट्रोक्स हुए। वो इसी वजह से कि जो ब्लड वेसल्स थी उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी हो गई थी, इन्फ्लेमेशन हो गई थी उसके अंदर। उनको कम करना ही तरीका है। और अब प्रोलॉन्ग्ड बार बार म्यूटेंट वायरस जो आ रहे हैं, उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स। तो जब भी हम उससे एक्सपोज होते हैं तो आपने देखा होगा अभी आजकल कुछ टाइम के लिए लोग बीमार पड़ते हैं, 2-3 दिन के लिए बुखार होता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं जल्दी से। फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लगे हैं पर जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं उस नई जीन से, वायरस से, और वो जल्दी उससे रिकवर कर जाते हैं। तो वैक्सीन्स ने एक्चुअली हमें हेल्प किया, नुकसान नहीं किया। बट सब क्लिनिकल इन्फ्लेमेशन जो कि वायरस की वजह से हुई, उसकी वजह से जिन भी लोगों के अंदर पहले ही टेंडेंसी थी या उन्होंने अपने लाइफस्टाइल की वजह से बना ली, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी। जिम जाने के लिए जो हम बात करते हैं कि जिम में हार्ट डिजीज होने लगे, लोग 6-6 महीने जिम नहीं गए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रही, और एकदम से उनको लगा कि हमें आज ही सब कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्सेसिव जो एक्सरसाइज हुई उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। Excessive things are always bad. Always bad. Yeah. तो इसके लिए जो वैक्सीन्स वाला जो कोरिलेशन लोग बोलते हैं वो कंप्लीट मिसइंफॉर्मेशन है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अभी तक साइंटिफिकली उसके बारे में कोई सच्चाई नहीं पाई गई है। लोग डिबेट्स करते रहते हैं, तो उसका आंसर तो अभी तक है नहीं कुछ। बिल्कुल। और डॉक्टर्स भी इस चीज़ को बहुत क्लियर करते हैं कि दिस इज द रियल थिंग, कि इससे कोविड वैक्सीन से और हार्ट डिजीज से कोई भी रिलेशन नहीं है। बट द यू कैन से मिसकंसेप्शन जो एक बार सोसाइटी में उठ जाता है, इट इज़ वेरी हार्ड टू क्लियर इट। बट आई होप कि आपकी बात सुन के और बहुत सारे डॉक्टर्स की बात सुन के ये अवेयरनेस लोग फैलाएं और अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन क्लियर कर दें। जैसे आपने अभी जिम की बात करी सर, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ये सब पहले भी होता था, बट आफ्टर कोविड द सोसाइटी हैज़ पुश्ड इट, कि ये ज़्यादा हाईलाइट होने लग गया मीडिया में, न्यूज़पेपर में, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लग गया कि एक तो कोविड की वजह से ही हुआ है और ऊपर से जिम करने से ही वहाँ पे कोई कुछ ऐसा कर रहे हैं वो लोग एक्सरसाइज, जिसकी वजह से ऐसा हार्ट पे हो रहा है। तो कुछ ऐसा होता है कि सर्टेन एक्सरसाइज करने से आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा यू कैन से स्ट्रेस होता है? हर एक एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी को स्ट्रेस होता है, पर अगर हम उसको बार बार करते रहेंगे तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेसफुल एक्टिविटी की हैबिचुअल हो जाएगी। तो जब भी कभी एक्चुअल स्ट्रेस आएगा तो बॉडी उसको झेल पाएगी। यस। और जो आप बोल रहे हैं कि कोविड के बाद, ये कोविड-19 के बाद जो न्यूज़ में आने लगा, बिल्कुल, तो न्यूज़ भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक 80 साल के इंसान को हार्ट अटैक आएगा तो क्या उसकी न्यूज़ बनेगी? उसकी नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो पर अगर 40 या 42 साल के इंसान को हार्ट अटैक आता है, उसकी न्यूज़ बन जाएगी। उसका रीज़न है, पहले तो वो अनएक्सपेक्टेड है, दूसरा वो सेंसेशनल है। सेकंड पॉइंट इज वेरी वैलिड। अनएक्सपेक्टेड भी है पर सेंसेशनल भी है, कि लोग ज़्यादा उसको पढ़ना चाहेंगे, उसके बारे में समझना चाहेंगे कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, इसको कैसे हो गया, किसी फिल्म स्टार को कैसे हो गया, किसी फिट इंसान को कैसे हो गया, तो लोग उसके बारे में समझना चाहेंगे। जो 70-80 पे हार्ट प्रॉब्लम होती है उसके लिए लोग एक्सेप्टेंस ला चुके हैं अपने मन में कि ये तो हो सकता है जी तब तक। बिल्कुल। अभी जैसे आपने एक्टर ये सब की बात बोली, तो आजकल अभी रिसेंटली एक बहुत यंग एक्ट्रेस को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और जैसा न्यूज़ आए, उस न्यूज़ से पता चला कि उन्होंने सर्टेन सर्जरीज करवाई थी अपने बॉडी में, ब्यूटिफिकेशन करवाया था, जिसके कारण कुछ मिस डोज ऑफ मेडिसिन हो गया, जिसकी वजह से उनके हार्ट पे इतना जोर आया कि हार्ट अटैक आ गया। तो जो आजकल लोग सर्जरी करवा रहे हैं, सर्टेन सर्जरीज, बोटॉक्स एंड एवरीथिंग, क्या इन सब के मेडिकेशन हमारे हार्ट को वीक बना रहे हैं या उसका कुछ इम्प्लीकेशन है हमारे हार्ट पे? तो ऑल्दो मैं जानता हूँ, पर मैं नाम नहीं लूँगा वो फिल्म एक्ट्रेस का। बिल्कुल। पर मेरा ये कहना है कि कोई भी दवाई, चाहे वो वेट लॉस के लिए हो, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन के लिए हो, चाहे वो अपने आप को फिट रखने के लिए ही हो टेक्निकली, वो एक तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। बिल्कुल। उसका एक्सेसिव यूज़ बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना चाहिए। एंड अगर कोई ले रहा है तो उसको रेगुलर मेडिकल फॉलोअप भी रखना चाहिए। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। ये ना सोचें कि हमने तो एक बार ही पूछ लिया और ये लाइफ लॉन्ग के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा,
अगर हम जब फास्टिंग करते हैं, जब इंटरमिटेंट फास्टिंग या प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें वो मेडिकेशन लेनी है कि नहीं लेनी है। ओके। एक तरफ हम फास्टिंग भी करनी शुरू कर दें, एक तरफ वो मेडिसिन भी लेनी शुरू कर दें, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे ब्यूटिफिकेशन हो, कोई भी तरीके की, तो उनका असर हमारी बॉडी पे होता है। वो असर एक टारगेटेड असर है। अगर हम वो टारगेट को समझ के उसको लेंगे तो वो फ़ायदा करेगी। बिल्कुल। पर अगर हम टारगेट को नज़रअंदाज कर देंगे और हम अंधाधुंध किसी भी दवाई को लेते रहेंगे, या फिर हम उसको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से बाहर लेंगे, डोजेज एक्सेस हो जाए, कम हो जाए, तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। ये किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। Yes. पर स्पेशली क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज हेल्थ की, और हम बात कर रहे हैं कि Especially about our हार्ट हेल्थ की, तो ये हार्ट के ऊपर और भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो या तो अगर फेल हो गया या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो लीथल हो सकता है, यानी उससे जान जा सकती है। यस, एग्जैक्टली, वेल सेड सर। और मैं एक चीज़ इसमें आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या हार्ट, जैसे आपने बोला लीथल है, उससे पहले हमें कोई साइन देता है? बिल्कुल। ये जो हम बात कर रहे थे कि छाती में दर्द होना, भारीपन होना, पैरों में सूजन आना, चक्कर आना, ये सब हार्ट के साइंस हैं। अगर किसी को सडन अटैक एंड हार्ट अटैक आ रहा हो, क्योंकि ये दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, एंड वन ऑफ आवर प्रीवियस पॉडकास्ट विथ T.S. Clare sir, he also mentioned the good difference, in a very simplified way to the viewers, कि what is the difference between sudden attack, sudden death and heart attack. बिल्कुल, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो सडन कार्डियक डेथ एक सिंड्रोम है अगेन, जिसमें कि एक सिनेरियो है जिसमें हार्ट को प्रॉब्लम होती है जो कई कारणों से हो सकती है। 70% लोगों को हार्ट अटैक होता है, पर बाकी 30% को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। उनके हार्ट के अपने ही इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एरिथमियाज हो सकते हैं। हार्ट के अंदर मायोपैथी हो सकती है, यानी मसल के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से जब हार्ट पंप करना कम कर देता है, फड़कने लगता है, या उसको सडन हार्ट अटैक आ जाता है, उसको मैसिव हार्ट अटैक हो जाता है, तो वो अपना काम कम करने की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम कर देता है या बंद कर देता है, कम या बंद। तो विद इन फ्यू सेकेंड जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। यस, डिजीनेस होती है और वो बेहोश भी हो जाते हैं उसके बाद। और अगर वो पूरा सिनेरियो एवर्ट ना किया जाए, उसको रोका ना गया हो, तो वो सडन कार्डियक डेथ के रूप में सामने आती है। ओके। उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी CPR। सडन कार्डियक डेथ को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, CPR, एंड देन एक्सपर्ट इंटरवेंशन। एक्सपर्ट इंटरवेंशन में हो सकता है उनको इलेक्ट्रिकल शॉक की ज़रूरत पड़े, या कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़े, हार्ट को सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, चाहे कोई स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़े, ब्लड थिनर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े, बाईपास ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, कुछ भी एक्सपर्ट इंटरवेंशन। सडन कार्डियक डेथ को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है CPR। ओके। दूसरी तरफ अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, तो चाहे छोटी सी मसल को और छोटे से एरिया को भी ब्लड सप्लाई एकदम से बंद हो, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। वो हर बारी जानलेवा नहीं होता। अच्छा। हार्ट अटैक माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। मेजर हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है, पर माइनर हार्ट अटैक हर बारी जानलेवा नहीं होता। उसका ट्रीटमेंट ब्लड थिनर मेडिकेशंस या फिर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, और उसमें आपको टाइम भी मिलता है हॉस्पिटल जाने तक के लिए, या फिर बाईपास ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। तो ये जो हार्ट अटैक्स होते हैं उनमें कई बारी टाइम होता है हॉस्पिटल पहुंचने का, जिनको बोलते हैं गोल्डन फ्यू आवर्स, कि आप पहले 2 घंटे में पहुंच गए तो हार्ट अटैक होने से भी रोका जा सकता है। जैसे ही हार्ट अटैक हो रहा है तो हार्ट की मसल को इंजरी ना हो, कंप्लीट डैमेज ना हो, इसको रोका जा सकता है कि विद आप 2 से 3 घंटे में ही पहुंच गए। पर सडन कार्डियक डेथ को आपको विद इन फ्यू मिनट्स ट्रीट करना है। उसका ट्रीटमेंट वहीं शुरू होगा जहाँ पे पेशेंट है। तो वो कैसे होगा? थ्रू CPR? ओके। तो जो सर्वाइवर्स हैं, जिनकी डेथ हो गई, वो तो बता नहीं पाते। जो सर्वाइवर्स हैं वो उसके लक्षण बताते हैं। वो लक्षण बताते हैं कि जब भी हमें ऐसा कुछ हो रहा था, उससे पहले हमें पैल्पिटेशंस होने लगी। पैल्पिटेशन मतलब अपने ही दिल की धड़कन पता चलना। छाती में बहुत तेज भारीपन हुआ, पसीना आया और चक्कर आने लगे। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जो कि इमीडिएटली किसी न किसी को या तो बताने हैं, या कोई सामने बैठा है तो पहचान ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पैल्पिटेशंस हो रही हैं और वो रुक नहीं रही हैं, चक्कर आ रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है, छाती में भारीपन हो रहा है, और साथ साथ में ऐसा लग रहा है कि हम अभी मर जाएंगे, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, वो साइंस हैं। हो सकता है कि ये सडन कार्डियक डेथ की तरफ चला जाए पेशेंट्स, और वो विद इन मिनट्स हो जाएगा। ओके। कभी कभी से क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों को भी ये बहुत होता है, तो इसका रीज़न क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया जो है वो है फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस। यस। उनको पैल्पिटेशंस होती हैं पर उनको चक्कर नहीं आते। अच्छा। या वो बेहोश नहीं हो जाएंगे, और वो एक रेकरेंट पैटर्न है
कि जब भी आप उनको लिफ्ट में बंद कर देंगे छोटी yeah. तो वो रेकरेंट है। जो सडन कार्डियक डेथ है वो रेकरेंट पैटर्न नहीं है, वो एक ही बारी सिंगल फिनोमेना है जो एक ही बारी एक के बाद एक कैटास्ट्रोफी ऑफ इवेंट्स होते चला जाएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया में वो रेकरेंट है कि आप एक सिनेरियो को क्रिएट करेंगे तो हर बारी पेशेंट को ऐसा ही फील होगा। बिल्कुल, वेल सेड सर। एंड लास्ट में मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गोल्डन लाइंस, जैसे आपने अभी गोल्डन फ्यू आवर्स बोले, वैसे ही गोल्डन लाइंस जो आप हमारे ऑडियंस व्यूअर्स को बोलना चाहे कि ताकि वो अपने हार्ट को हेल्दी रखें और जितना हो सके अपने लाइफ को हेल्दी एंड लॉन्गर बना सके। सबसे पहला इसके अंदर ज़रूरी है अवेयरनेस। अवेयरनेस ही आंसर है किसी भी प्रॉब्लम से बचने का। अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना कि क्या वो रिस्क पे हैं। दूसरा, उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को आज से ही चेंज करना। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप साइकिल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सभी को अभी से चेंज करना। थर्ड, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर और स्पेशलिस्ट से सलाह करके अर्ली डायग्नोसिस करना ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। और अगर बाय चांस कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, हार्ट में वाल्व डिजीज़ है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, तो घबराना नहीं। बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग की स्टेम सेल थेरेपीज़, रोबोटिक सर्जरीज़। रोबोटिक सर्जरीज़ में अब ऐसा हो गया है कि पेशेंट्स को छाती कटने का डर नहीं है। yes. वो 1 या 2 दिन में रिकवर करके अपने घर पे वापस जा सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरीज़, कॉम्प्लेक्स एंडोवास्कुलर स्टेंटिंग्स, यानी कि जिसमें कि बहुत ही प्रिसीजन स्टेंटिंग की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इन सब का आंसर क्या है? अवेयरनेस। अगर पेशेंट को या किसी भी नॉर्मल इंसान को अपने आप को किसी भी कॉम्प्लिकेशन से या रिस्क टू लाइफ से बचाना है, उसको अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस अबाउट ओन रिस्क फैक्टर्स, अबाउट लाइफस्टाइल, अबाउट एक्सरसाइज, अबाउट अर्ली डायग्नोस्टिक्स एंड अबाउट एडवांस थेरेप्यूटिक्स। यस, ये सारी चीज़ों का आंसर सिर्फ अपने मन में समझ के उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने से। बिल्कुल, वेल सेड सर। एंड जैसा आपने एडवांसमेंट्स की बात कही, मैं यही चाहूँगी व्यूअर्स को कि जब वो अपने डॉक्टर के पास जाए, वो अपने दिमाग को एकदम स्टेबल करके जाए और जितना हो सके ओपन रखे कि जो भी डॉक्टर उनके लिए सलाह दे रहा है वो एकदम बेस्ट दे रहा है। और अगर कुछ उनको डाउट है या इनपुट देना है तो उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट दे, ताकि आगे जाके आपको कहीं फ्यूचर में ये ना लगे कि मैंने अगर ये बोल दिया होता तो अभी मैं ओवर ट्रीट ना होता या शायद मेरे साथ कोई और सर्जरी होती। बिल्कुल। तो फ्रूटफुल डिस्कशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्टर के साथ। अगर पेशेंट सवाल पूछेगा नहीं तो कई बारी डॉक्टर भी उसको बताने से झिझकिचाता है। जैसे कई बारी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता ये पेशेंट को मैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं, बिल्कुल, ओपन सर्जरी के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं, बिल्कुल। बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स मैंने रियलाइज किया कि इन्फॉर्मेशन नेवर हर्ट्स। एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन नेवर हर्ट्स। तो इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है, फिर पेशेंट की चॉइस है कि उनको क्या करना है। एग्जैक्टली, एंड इट्स ऑलवेज द ट्रूथ दैट ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड ऑलवेज हैव द फेथ ऑन डॉक्टर एंड वाइस वर्सा, always do the best for the patient as well from the doctor side. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो नियरेस्ट डॉक्टर का होता है, फैमिली फिजिशियन का। फैमिली फिजिशियन इज द फर्स्ट पर्सन जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं, जिनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। जब आप स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं तो आपके फैमिली फिजिशियन अगर उनको ब्रीफ कर दें, yes, तो बहुत सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो शायद पेशेंट नहीं दे पाता है या देने से हिचकिचाता है, पर फैमिली फिजिशियन को पता होती है और उनको पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कम्युनिकेट करके ट्रीटमेंट को बेस्ट पॉसिबल रूट की तरफ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर डिकोडिंग एंड मेकिंग ऑल द जिसे कहते हैं बहुत डीप एंड बहुत tough terminologies in a very simplified way, and it was great talking to you, gaining all the insights and knowing about जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है, आजकल के जो मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है, आपने उसको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू एंड विशिंग you all the cardiologists a very happy World Heart Day, to all the doctors, especially to the cardiologists. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much viewers, हमें देखने के लिए और अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। Thank you. Thank you so much.